So we can start. Yeah, why? Adam. So let me introduce myself. My name is Salman, and I'm an agriculture engineer. Actually, I do some projects in abroad, like Middle East countries and something. Also doing some projects in India also. Started this concept was started in 2016 actually. So after my college completion, I will come to this actually. So after that, a lot of experience. Then I'm also still learning also. So as of now, we know that hydroponics is one of the one industry that is that's daily it is increasing day by day. So we can see that in like what is it? And every day in every country there is a new innovations is going on. So hydroponics is generally without soil we can plant anything. So you know that you know the basics of hydroponics everything. So there are different types of hydroponics are there. So it's ebb and flow is there, then aeroponics is there. All are in the same category. So all we all are without using soil. Instead of soil, we use another medium, and maybe anything like a cocoa peat or like aeroponics cubes or anything. And it depends upon different material that we are using. So we will finish this within a 10 minutes period. And in this period, I will discuss you all the requirement for starting an hydroponics farm setup. At the same time, you can ask me questions also. Whatever you have the doubts, you can clear it at the same time also. So as of now, like 1 second. So first part is doing in hydroponics. You need to understand what product do you need to grow. So that need to be something like you need to understand which market there is a market or not for selling the products. So if you find a market in your city that you are finding like cucumber, you can sell very good in your market. Then you have to grow the cucumber and sell in the market. The first part is market analysis. So we need to understand which market is, which product is best for the market. Second part is to identify on the basis which plant you need to grow. So maybe cucumber, maybe tomato, or maybe other products. So the other part is around. So you need to understand your climate is another part. For example, if you have an humidity, higher humidity region, so it will be difficult for you to grow the plants. It didn't mean that there will be a difficulties. It's because there will be more pests and more difficulties coming due to the humidity and the temperature. So we need to understand which plant will be suitable according to your temperature and humidity. And regarding the seasons, you need to understand about the seasons also. So every plant will grow in a particular season. If you are you have a greenhouse and all the other things, so if you have a greenhouse also, you have to understand that this season will be suitable. Then sometimes there will be like higher humidity will be there, like less temperature will be there. So you have to understand that this plant can be grow in, for example, we can grow in September or October, November, which is best. According to that, you have to plant. The other part is you have to understand which medium you are using. So normally in aeroponics, we use Oasis cubes. It is one of the best cubes that we have available right now. We can use cocoa peat, we can use perlite, or we can use other things. That depends upon which product that we are producing. Another part is you need to understand that regarding the pest management. It is very must that without a pest management program or
you need to be very cautious regarding the pest, because pest is one of the most devastating for all the things. So you have to understand which pest will come, and you need to know which pesticide we need to apply. So until now, I have discussed some details with you. If you have any doubts or anything, please ask. Okay. Okay. So can I go first? Yeah, sure. So pest, when we talk about pest in hydroponics or pest in soil, so in hydroponics the pest attack will be lesser compared to the pest in doing in soil, right? We need to apply this some chemicals to make sure that the pest will not be there in the root zones also. So it starts from the when the plants start growing. At the same time, you need to apply these pesticides. So not only for the upper parts, but also for the lower parts also, the root area also. So they spray pest even in a hydroponic tower also. Yes, we have to do the pesticides. You have to apply the pesticides. So it depends upon which pest you when a pest were attacked. So we will understand that this pest is there. So we need to apply some chemicals that related to that pest. Okay. Please. Any other doubts? क्वेश्चन थोड़ा सा लेटर स्टेज ऑफ फार्मिंग का है. Which one? I don't get you. तो मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे? जी हिंदी में बोलिए, कोई मुश्किल नहीं, मैं समझता हूँ. हिंदी आता है हिंदी भी आता हो. मैंने कोरिएंडर उगा रखा है. हाइड्रोपोनिक टावर्स पे कोरिएंडर उगा रखा है, और जो कॉलीफ्लावर्स के लिए रखा है, तो मैंने इसको कॉलीफ्लावर उगा लिया था. वो इसलिए है ना कि वो जो मैनुअल होल्स पंच करना और उसको मोल्ड करना ग्लो गन से, ये थोड़ा सा बहुत टीडियस टास्क है तुम्हें, है ना? जी. इसको कमर्शियल लेवल पे लेट्स से 1000 टावर्स का अगर हमें फार्म लेना हो तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? अब जो अभी बोल रहे हैं कि आपका जो टावर बनाता है, जो हाइड्रोपोनिक्स के लिए बनाता है, वो टावर बनाने में बहुत मुश्किल काम है. वो सही है. वो अगर आपको एक कमर्शियलाइज करना है तो इसका मोल्ड बनाना पड़ेगा. मोल्ड मतलब जो मोल्ड के लिए भी पैसा आता है, नॉर्मली 2 लाख तो 3 लाख का ऊपर मोल्ड के लिए आता है. तो ये मोल्ड एक टाइप का नहीं है, 3-4 टाइप का होना चाहिए. सो नॉर्मली दिस कंपनीज मेक दैट मोल्ड एंड दे सेल, not selling the mold, selling the product. That's why that is expensive. They need to get the return ROI for the molds. So if you want to make easier, so the first option I prefer is to make your own mold. That is expensive. If you want to make a DIY, then you have to take some time for making this. There's no other option. There are still some options. How, I don't know how, कैसे आप mold बनाया. Normally I see that there is some holes in the pipe. So normally we don't put holes in the pipe. हम लोग क्या करते हैं कि जो पाइप होता है ना, उसमें just for an example, okay? So this is the pipe, okay? And what you have done is that you put a hole here, and normally what we do is that we cut here, just heat here, we put a pipe here and push like this. ऐसे करते हैं. तो वो थोड़ा आसान है. जो कटिंग करने के बाद उसको जो मोल्ड होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल है. जब आप जो एक जो मेश कप डालते हैं ना इसमें, वो बहुत मुश्किल होता है. जब आप मेश कप को डालते हैं तो वो मुश्किल होता है, अब मतलब अंदर जाएगा. तो ये इसका ज़्यादा ईजियर वे नहीं है. नहीं तो हमारे दूसरा एक बंदा जो है हमारा, जो उसमें है सुफियान है, उससे पूछ कर, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो बता सकते हैं कैसे हम उसमें मैकेनिकली बड़ा मोल्ड बना सकते हैं, ईजियर मोल्ड बना सकते हैं.
ओके, क्योंकि ये वाला काम इनके अगर हमें मैनुअली करना हो, जो हमने मैनुअली कर रखा है, ये एक एक पाइप में 115 होल्स सेट होगा। जी सही सही सही। तो एक टावर में मैंने उगा रखा है अप्रोक्सीमेटली 10 kgs ऑफ कोरिएंडर उगा रखा है हमने एक एक टावर में, सिंगल टावर से मैंने शुरू किया था। तो ये मेरे पास 20 टावर्स है ऐसे। ओके तो इन 20 टावर्स पे काम करते करते बहुत समय लग गया, एटलीस्ट 2 to 3 months लग गए, क्योंकि मैनुअली सबको करना था ना। जी सही इसके सही। लिए मेरे पास कोई मशीन नहीं थी। अब ये भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 1000 टावर्स का अगर हमें फार्म बनाना हो, ये तो बहुत अच्छा होगा ये, लेकिन बात ये है, इतना लेबर चार्ज मेरे कॉस्ट मांगेगा ना फिर वो। जी जी जी, वो टाइम लगेगा क्योंकि आप जो बता रहे हो उसमें हम लोग भी वैसे ही सेम किया है पहले, तो हमें मालूम है कि कितना टाइम है। हम बहुत आइडिया देखा है कि कैसे ऐसे ही आसान से आसानी बनाओ। बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि नहीं तो हमें एक सिस्टम बनाना है कि उसमें 4-5 जो हीट गन होता है ना उसमें लगाना है और एक टाइम फोल्ड करने का एक डिवाइस बनाना है, उसमें ऐसा कुछ बनाया तो वो हो जाएगा। क्योंकि एंड्रोटोनोमी के टावर्स बहुत एक्सपेंसिव है। जी चाइना में भी हम 2-3 लोगों से बात किया था, तो ऑनलाइन अलीबाबा के थ्रू, तो वो पर टावर अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग इंपोर्ट चार्जेस 7,000 to 8,000 हो जाता है पर टावर का कॉस्ट। जी जी जी। और अगर लेबर चार्ज इंक्लूड करें तो जो मेरा सिस्टम है, मतलब मैनुअली जो हमने पाइप किया कंसिडर, उसमें 1500 एट मोस्ट लगेगा, बट ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, जी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग। वो सही है वो टाइम लगेगा। इसमें बड़ा अच्छा बना है, ऐसा क्या? बहुत अच्छा बनाया है वो पर। वैसा अगर 20 टावर्स बनाया है, ऊपर में करंट पैड कूलिंग सिस्टम के साथ एक ग्रीन हाउस भी बनाया है, जी 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 ओके बट वो छत पे है, तो 500 स्क्वायर फीट एरिया बहुत छोटा सा है। जी जी अब जी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक आर्डुइनो को यूज करके हम लोगों ने ह्यूमिडिटी सेंसर भी बनाया है जी जी कि नेक्स्ट से 60% ह्यूमिडिटी से ऊपर जाता है ना, तो वो मेरा ऊपर शावर बंद कर देगा, वो जो स्प्रिंकलर होता है वो बंद कर देगा। जी और अगर और नेक्स्ट से 30% से नीचे ह्यूमिडिटी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा, मतलब वो स्प्रिंकलर जो जी जी। वो सही वो है। हमने इसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया है। आप जो अभी बता रहे हैं जो उसका जो डिज़ाइन होता है उसमें जल्दी बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसमें हम 5 या 4 मोल्ड, 4 या 5 मोल्ड एक साथ लगाएगा और काम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत सारा सामान लगाना पड़ेगा, 4-5 हीटर एक साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि पाइप उसमें हम जो जो सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एक ऐसा हीटर बनाना पड़ेगा हीटर का जो एक साथ पूरा एक साथ तो उसका काम होना चाहिए। उसके लिए ये एग्रोटोनॉमी का मोल्ड देखा है वो? जी, वो मोल्ड क्या होता है कि पहले से ही वो मोल्ड एक बनाया और उसको जो मोल्ड से जो पीवीसी बना रहे हैं वो सेल कर रहे हैं, मार्केट पे सेल कर रहे हैं। तो इसलिए अगर अगर वो 3,000 पे या 4,000 पे मतलब इसका भी नीचे सेल किया वो लोग को फायदा नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव है हाइड्रोपोनिक टावर, वही प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को मालूम है बाहर से जो खरीदता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है नॉर्मली। इंडिया में भी एक है, मैंने एक टावर देखा, उनको मैसेज किया था, बट मुझे नहीं लगता दे विल सेल लेसर देन 10,000। और एक कंपनी है, वो कंपनी है शिवराज एग्रोटेक, वही वो पाइनएप्पल टावर सेल करते हैं 8,000 to 9,000, उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 है। मैं एक दूसरे एक और बात करता हूँ कि आप जब एक टावर्स खरीदता है तो वो टावर्स से हमें कितना फ़ायदा मिलना है वो पहले देखना पड़ता है। नॉर्मली आप लोग एक टावर्स खरीदते हैं या बनाता है, जब बनाते में भी हम लोग इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट लेता है तो उसमें से हमें चेक करना है कि कितना टाइम में हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। नॉर्मली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम लगता है मिलने के लिए, कुछ टाइम लगता है।
तो पहले चीज़ क्या है कि हमें जानकारी जाना चाहिए कि कितना टाइम में हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। दिस इज फर्स्ट। तो क्या होता है कि हम लोग 50 प्लान्स लगाता है, तो 50 कोरिएंडर, फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर लगा, हम कितने में सेल करेंगे 10 या 20, तो 50 × 20 मतलब एक महीने में हमें मिलता है 1,000। सिंपली से 1,000 मिल गया। अब वो हमें जानना है कि कितना प्राइस में हमें ये सेल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हमें इसे बनाना पड़ेगा। एक टावर में 10 kg Normally, I have done this instead of this PVC, 8 इंच का PVC को प्राइस आता है कि 1,000, 1,500, 2,000 का ऊपर आता है। तो उसमें कैप लगाना पड़ता है, उसके बाद होल्ड मारना पड़ता है, ये सब होता है। तो उसके लिए प्राइस ज़्यादा हुआ, इसलिए मैंने क्या किया कि ये ड्रम है ना, ड्रम हमें 300 भी मिलेगा, 300 मिलेगा, और 300 में इसमें होल्ड भी बना सकते हैं। मतलब बहुत कम प्राइस में होल्ड बनाएगा, 300 में ड्रम मिल जाएगा, तो इसलिए प्राइस बहुत कम किया। अब में सब जाने के लिए अंदर फैन लगाना पड़ेगा ना, इसलिए समझो भाई। लाइक ड्रम है, ड्रम में होल्स मार के सब कप्स बिठा दिया। अब वो दो तरीके से मैंने किया। वो पहला चीज़ है कि जो ड्रम का ऊपर से फॉगिंग कर सकते हैं, अगर वो फेल होगा तो दूसरा सेटअप किया, वो है ड्रिप इरिगेशन। ये दो आइटम्स हैं। मतलब अगर फर्स्ट ऑप्शन खराब हो गया तो सेकंड हो जाएगा, अगर सेकंड खराब हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इसलिए हमने एक सेफ्टी के लिए रखा था। इसलिए वो आप देख रहे हैं जो ड्रम का ऊपर से एक पाइप जा रहा है, उससे फॉगिंग ड्रिपर्स होता है कि जो लो प्रेशर ड्रिपर्स होता है, फॉगिंग ड्रिपर्स होता है। सो दैट वो एरोपोनिक्स जैसा वाला फीलिंग। जी एरोपोनिक्स और ड्रिप इरिगेशन का कॉम्बिनेशन बना है। अच्छा, से ये टावर खरीद के फिर बनाने को अगर कोरिएंडर प्लांटेशन भी लिया तो 10 kg अगर निकल रहा है एक टावर से, तो 10 months लग जाएगा जस्ट टू गेट द कॉस्ट ऑफ वन हाइड्रोपोनिक टावर। जी वो हमें पहले जानना चाहिए कि कितना में हम बना सकते हैं, कितना में। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सब टाइम में अब की एग्रीकल्चर जो भी कोई भी कर रहा है वो DIY में कर, क्योंकि डू इट योरसेल्फ। क्योंकि नहीं तो क्या पता है कि दूसरे कंपनी से खरीदता है, हमें फायदा नहीं है। एग्रीकल्चर कैसे बनाते हैं? वो ऐसे ही है, हम लोग सब लोग जो काम होता है ना, वो हमारे काम ही ऐसा है। पर क्या है ना कि जो स्टार्ट में होता है, वो उसके लिए जो खरीद कर जो बनाता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जो रिटर्न बहुत मुश्किल है। इसका साथ साथ हो जाता है, इसके साथ साथ मार्केट में आप जान सकते हैं कि मार्केट में आज एक प्रोडक्ट सेल किया 1 रुपया में, कल आ जाएगा 50 पैसे, आ जाएगा 5 रुपया, कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्केट जाकर सेल भी वो मारेगा, ज़्यादा है नहीं चाहिए। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है नॉर्मली एग्रीकल्चर जो करते हैं सो। तो इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस होता है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, बहुत कम करना है। कोई भी बहुत ज़्यादा मॉडल हम बना सकते हैं, फिर पे बहुत ज़्यादा चीज़ बन सकते हैं, उस पर से हम बना सकते हैं। कम करना है अपने। जी बोले। इनको छोटा सा कंटेंशन रही कि कोरिएंडर प्राइसेस गर्मी में बहुत, और हमने एक्सपेरिमेंट करके गर्मी में कोरिएंडर उगाया है। ऑल्दो ये बेचने के लिए नहीं उगाया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, तो वो रिलेटिव्स को हमने मतलब दे दिया खाने देने के लिए। बट मुझे बात ये है कि वो गर्मी में उगा सकते हैं हम लोग। फाइनल पैक कूलिंग सिस्टम और वो पावर जो लगा होता है ना, उसके बेस उसको यूज करके हम लोग गर्मी में उगा सकते हैं। और गर्मी में समर टाइम पे कोरिएंडर का कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली रिटेल मार्केट में 450 पर केजी इधर है हमारी तरफ है। आपके तरफ क्या है वो मालूम है। हमारे तरफ 400 पर केजी है, और होलसेल मार्केट में एटलीस्ट 250 पर केजी हो जाता है। तो कि जो अभी आपका गिफ्ट आप जो बात करते हैं, जो टावर का कॉस्ट है उतना नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा। आई थिंक
तो 1.5 से 2 महीने का एक साइकिल होता है कोरियर। कमर में कर सकता। एग्जैक्टली, अगर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए पूरे सेटअप को, तो हम लोग और ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं हम लोग पूरा। यानी द होल ईयर में वो एक सीजन में रिकवर हो जाएगा पूरा। एग्जैक्टली, वो सिर्फ कोरिएंडर के साथ नहीं है, गर्मी में ऐसी चीजें उगाना जो जाड़े में उगती हो या कॉमन नहीं हो गर्मी में, वो पैरेंट कूलिंग सिस्टम तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं किया और नहीं सकते हैं, और टेम्परेचर बहुत कूल डाउन करते हैं बहुत ज्यादा। स्वप्न इनकी हो जाता है कूलिंग एंड ह्यूमिडिटी से। नहीं, वो 800 डेज का प्लास्टिक शीट यूज करना होता है। यूजुअली ट्रेडिशनली लोग 600 का यूज करते हैं, हमने 800 पे यूज किया क्योंकि वो काफी थिक होता है, और प्लस में व्हाइट कलर का शेड नेट यूज किया हमने। 2 चीजें यूज करी, क्योंकि हीट और लाइट बहुत एक्सेस हो जाता है, तो उसके कारण फिर टेप बर्न होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो नहीं करनी चाहिए। ओके। और एक और क्वेश्चन था मेरा, हम लोग टावर्स में अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं? टावर्स में अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर्स यूज कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक, एम्पलीफायर जो होते हैं ना, समझ गए। इसमें H1 इसमें एक प्रॉब्लम आता है। नॉर्मली एक जो अल्ट्रासोनिक डिफरेंस होता है वो जल्दी सब्जी खराब होता है। नो वो हाँ ठीक है, वो तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, बट उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। वो सही है, बढ़िया है। इसके लिए आप दूसरे एक रिस्क कर सकते हैं, इसमें जो इसका इतना रिस्क नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि नहीं तो आपके पास फुली ऑटोमेशन होना चाहिए कि अगर प्लान डाइट हो गया तो आपका सिस्टम आपको अरेक्ट कर। ये एक पार्ट है एक्चुअली, जो हम लोग जो फोकस यूज होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोकस। 2 टाइप का होता है, एक आता है हाई प्रेशर आता है, एक आता है लो प्रेशर। हाई प्रेशर का होने पर इसमें हमें प्रेशर बार ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 100 to 150 बार होना चाहिए। लो प्रेशर में होता है कि जैसे हमें उसके बाद होना चाहिए 1.5 to 3। ये दोनों अलग अलग है, मतलब लो प्रेशर में हम लोग जो यूज करते हैं वो अलग है, हाई प्रेशर में अलग है। हाई प्रेशर में हम लोग फॉगर यूज होता है, जो डिफरेंस होता है, मतलब तो अल्ट्रासोनिक का इसका पास इसका जो पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, तो सेम होता है, इसका जो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। पर जो सिस्टम बनाने के लिए हमें बहुत क्या होना चाहिए, इसके पंप होना चाहिए, जो मिस्टिंग के लिए होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, मतलब 200 to 300 में आता है, जो 0.2 का और होने वाला या 0.1, वो सेफ है, वो सेफ भी है, और एंटी ड्रिप्स होता है, मतलब ड्रिपिंग नहीं होता है। इसका साथ साथ पानी भी बहुत कम होता है, मतलब 25 लीटर्स टू 30 लीटर्स का अंदर होता है, बहुत कम होता है। पर अल्ट्रासोनिक के जैसे नहीं होएगा, क्योंकि बहुत उसका पार्टिकल बहुत कम है, वो है या बेटा। लेकिन अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो एसेंशियल एरोपोनिक्स है नहीं, वो बस वर्टिकल एनएफटी सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, जी। है ना? We cannot say that it's aeroponics. Actually, it's not aeroponics. क्या होता है कि मेरे को मेरा एक दोस्त है, वो हर टाइम में मेरा चैनल पे आकर बोलते हैं कि ओके ये एरोपोनिक्स में ये तो मैं उससे बहुत बात करता है, तो वो बताता है उसका जो साइट में जो यूट्यूब चैनल में बार है कि कैसे एरोपोनिक्स वर्क होता है। एरोपोनिक्स वो बता रहे कि पूरा जो पार्टिकल्स होता है उसका साइज बहुत कम होता है, 20 माइक्रोन्स का नीचे आता है, तो वो एरोपोनिक्स होता है। दूसरा जो है वो एरोपोनिक्स नहीं है, वो सब लो प्रेशर आता है, ये हाई प्रेशर में होता है। इंडिया में कोई ऐसा फार्म नहीं है जहाँ पे हम लोग विजिट कर सके, मतलब 1-2 फार्म विजिट किए हमने, बट वो बेसिकली एनएफटी यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनएफटी यूज करते हैं। कोई इंडियन ऐसा नहीं है जो टावर फार्म्स यूज कर रहा हो कमर्शियल? वो उसके बारे में मेरे को बहुत कम जानकारी है। नॉर्मली लास्ट टाइम किसी से बात किया तो वो बता रहे कि जो टावर फार्म होता है वो इंडिया में कम हो रहे हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहे हैं। फर्स्ट चीज़ वो खर्चा आ रहे हैं, सेकंड चीज़ बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं,
इंडिया में हम लोग जो केरला में होता है, जो केरला में इसका जो क्या होता है, इसका फार्म होता है, इधर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 90 to 100 ह्यूमिडिटी होता है, इसलिए इधर कुछ भी पालना मुश्किल है। बट जगह भी है उधर हम कर सकते हैं। भाई पुराना पे रहता है रहने वालों तो उधर उसका ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो अगला चीज़ होता है जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन फॉर्मुलेशन। तो ये बहुत आसान है एक्चुअली, बहुत आसान है। अंशुमान ने बताया कि न्यूट्रिशन वो एक सॉफ्टवेयर है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, हाइड्रोबॉडी। तो क्या होता है कि जब आप न्यूट्रिशन बना लेगा तो आपको उसका पीपीएम जानना चाहिए। नॉर्मली एक प्लांट का साइकिल ऐसा होता है कि जब एक प्लांट जब सीड से फ्रूटिंग आता है उसमें हम डिवाइड करते हैं। सो ऐसे है कि हम लोग जो सीडलिंग स्टेज बोलते हैं, उसके बाद उसे बोलते हैं कि जो ट्रांसप्लांट स्टेज होता है, उसके बाद जो वेजिटेटिव स्टेज होता है, फ्लावरिंग स्टेज होता है, उसके बाद फ्रूटिंग स्टेज होता है। तो इसलिए देयर आर सम डिविजन बिटवीन दिस। सो एवरी वीक द न्यूट्रिएंट्स विल बी चेंज, विल नॉट गिव सेम न्यूट्रिएंट फॉर एवरी टाइम। सो इन हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा होता है कि इसमें पीएच और ईसी आता है। पीएच मतलब जो पीएच का रेंज आता है कि 5 का या 7 नहीं, 6.50 का 5 का अंदर होना चाहिए। और ईसी आता है कि डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट ईसी आता है। 0.8 में शुरू करके 3.54 तक आता है, जो उसका जो पीएच और ईसी ये दोनों इसमें बहुत जानना चाहिए। तो हर जो प्लांट होता है उसमें डिफरेंट पीएच आता है, डिफरेंट ईसी आता है। तो क्या है ना कि हमने इसके हिसाब से हमें न्यूट्रिएंट बनाना है। इससे न्यूट्रिएंट बनाने के लिए हमें पहले जानकारी चाहिए कि इसके पीपीएम कितना आ रहे हैं, नाइट्रोजन का पीपीएम कितना है, फॉस्फोरस कितना चाहिए, पोटासियम कितना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग केमिकल भी सेलेक्ट करते हैं, कौन सा केमिकल चाहिए, नाइट्रोजन पोटासियम फॉस्फेट, पोटासियम नाइट्रेट। इसका हिसाब से हम उसका जो न्यूट्रिएंट होता है ना वो सेलेक्ट करता है। तो इसके हिसाब से हम लोग जो पहले जो केमिकल सेलेक्ट करता है, उसके बाद हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर में डालकर सॉफ्टवेयर से एक डाटा निकालते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप लोग चैट जीपीटी जानते हैं? चैट जीपीटी आप एक पर्सन आईटी में काम कर रहे हैं, एक पर्सन एसबीआई है। सो यू नो दैट चैट जीपीटी इज देयर, राइट? सो चैट जीपीटी में हम लोग सब न्यूट्रिएंट का डाटा हम निकाल सकते हैं इजीली। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर में निकाल रहे हैं वो चैट जीपीटी से पूछो कि मेरा ये सीडलिंग स्टेज है, तो ये सीडलिंग स्टेज में मेरे को एक न्यूट्रिशन फॉर्मुलेशन बनाकर दे दो, तो वो कितना ग्राम कितना लीटर में चाहिए वो बनाकर हमें दे देगा। वो जस्ट यूज़ कर, वो एक सेफ साइड है, क्योंकि चैट जीपीटी में जो डाटा आता है वो तकरीबन सेफ होता है। तो क्या है ना कि जब हमें जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आता है ना, उसके हिसाब से उसका कुछ क्या है, कुछ प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। नॉर्मली जो न्यूट्रिशन हम लोग दे रहे हैं जो उसके हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम में प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन कम चाहिए, कुछ टाइम में ह्यूमिडिटी कम चाहिए। तो इसका हिसाब से जो न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं ना वो भी चेंज होता है। ये नॉर्मली होता है, वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग बहुत कम में बता रहे हैं। कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए, मैं बताएगा, मुश्किल नहीं। वो क्या है कि मैं अभी आपको बता रहा है वो इसी टास्क दूसरे आदमी लोग नहीं बताते, क्योंकि ये एक सीक्रेट बना कर रखा है। चलिए ये एक मतलब आप लोग को इसका थोड़ा जानकारी मिल गया तो आप खुद ही बना सकते हैं। ये पहला इतना बहुत मुश्किल था, अभी बहुत इजी है।
चैट जीपीटी जैसा जीपीटी जेमिनी जैसा सॉफ्टवेयर आए हैं, तो इसलिए आप लोग डाटा निकाल सकते हैं। तो डाटा निकाल कर आप काम भी शुरू कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक यूट्यूब चैनल में एक वीडियो देखा, तो उसमें एक आदमी बता रहे कि न्यूट्रिशन का डाटा दिया, पर कैसे ये न्यूट्रिशन बन गया ये इसका डाटा नहीं दिया। ये हाइड करते हैं, नॉर्मली इंजीनियर सब लोग हाइड करते हैं। इवन मैं भी, मेरा बहुत सीक्रेट में हाइड कर देगा, पर फिर भी मैं बहुत डिटेल्स दे देगा, क्योंकि कुछ आदमी लोग बनाकर कुछ, हम लोग एक कम्युनिटी बन रहा है। आप लोग कुछ बनाया तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आया, हम लोग डिस्कस किया, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट होता है ना, वो मेरा को भी बाद में फ़ायदा होगा। मेरा को भी ये सेम प्रॉब्लम आ गया तो होगा तो क्या, तो मैं भी ये सॉल्व कर सकता। ऐसा ये एक एग्रीकल्चर ऐसा है कि एक कम्युनिटी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली होता है। आदमी लोग बीच में बात करके एक प्रोडक्शन सिस्टम बनाया है। तो हमारे तरफ यही प्रॉब्लम है कि लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते, और तो हमें नहीं होता है। इंटरनेट से जोड़ना पड़ता है थोड़ा सा। जी सही। इस तरह में है भी कोई बहुत है, पर ऐसे हाँ नहीं, 2-3 लोगों के साथ मैंने आइडिया शेयर किए, बट वो लोग बोलते हैं क्या खेती करेगा, बकवास चीज है, जॉब करूँ चुपचाप वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये एक बिजनेस नहीं है, सच में ये बिजनेस नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि ये देखो कि हम लोग जो बैंक से लोन मिलता है, इसमें जो बैंक से लोन मिलने वाला जो परसेंटेज होता है 1%, 2%, 3% बेस में एग्रीकल्चर को मिलता है। अगर आप लोग कुछ गाड़ी खरीदते हैं, उसका जो परसेंटेज लोन का परसेंटेज होता है वो 11, 13, 14 है। गवर्नमेंट को मान इसमें से फ़ायदा निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत आदमी लोग बोलते हैं कि हमें इतना मिला, हमें मन में इतना मिल रहा है, पर उसमें जो दूसरे एक बिजनेस भी वो बना रहे हैं साथ साथ। इसमें से हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये पैशन है, पैशन को जो बिजनेस बनाना चाहता है, मेरा एक दोस्त भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग जो पैशन होता है, वो जो पैशन से हम लोग जो बना रहे हैं, उसके हिसाब से हमें बनाना है, और उसमें से हमें एक फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनाना है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन प्लस सेकंड ऑप्शन बनाना है साथ में। तो इसलिए ये बिजनेस बनाएगा। और पहला चीज़ क्या है, मैं पहले से बताया, इसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत कम करना है। बहुत मतलब वो एक ड्रिपर उसमें शॉप से हमें खरीदना है 5 रुपये में, इधर केरला में वो सेम ड्रिपर आते हैं कि 50 पैसा में, 25 पैसा आते हैं, 50 पैसा में वो ड्रिपर आता है। वो ऐसे ही बनेगा। इंडिया मार्ट में गए ना, आप लोग समझ सकते हैं कि इतना पैसा में हमें ड्रिपर मिल जाएगा। बार्गेन करो, मेरे को इतना में मिल रहा है, इतना में मिल रहा है, तुम लोग इतना में, तो वो लोग क्या आपको दे देगा। ऐसे कम आता है हर चीज़ को। एक ट्यूब को आता है 6 mm ट्यूब आता है, 16 mm ट्यूब आता है, 12 mm ट्यूब आता है। इसका प्राइस आता है कि 8 या 10 में शॉप से खेलता है। सेम जो चीज़ है वो इंडिया मार्ट में बहुत सारा कंपनी आता है, उसमें 5, 4 या 3 में मिल जाता है, 2 में भी मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा में होना पड़ता है। तो इसे हम पैसों को बहुत कम करो और प्रोजेक्ट शुरू करो, तो हमारा फाइनल जल्दी आ जाए। उसमें एक तो चीज़ क्या है ना कि हम उसका जो एक आदमी को प्राइस भी आता है, नॉर्मली जो स्टाफिंग कॉस्ट आता है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जब एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसमें ये सब चीज़ पहले डालता है, क्योंकि क्या क्या चीज़ करना चाहिए, मतलब जो स्किल्स का प्राइस, जो फर्टिगेशन का प्राइस, ऐसा बहुत चीज़ हम एक चार्ट है, तो वो चार्ट में सब चीज़ को हम पहले से ही राइट करके डालता है, लेकिन इतना में आएगा और कितना टाइम में हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, ROI आएगा। इसके हिसाब से हम लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं नॉर्मली। ओके, सो और कुछ
right, towers में planting करना rather than doing it on farm, because coriander plants I think 35 days में farmers earn 85 नहीं 45 days आता है। यूट्यूब वीडियोस में सब गलत बोल रहे हैं, मतलब farmers नहीं मैं बता रहा हूँ कि 35 नहीं है 45 days है। मैं ये सब बनाता है उस समय भी मेरे को भी सब चीज़ हम लोग को मालूम नहीं होते। हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम सब मालूम है, हम लोग ऐसा है, नहीं, हम लोग सब लोग सीखता है। हम लोग गूगल में सर्च करने का बहुत आदमी लोग बोलते हैं कि 35 में आता है, 40 में आता है, 50 में आता है। जब हम लोग इसका जो शुरू होता है उसमें से हमें मिलता है कि इसका जो टाइम होता है कि 145 होता है। कुछ प्रोडक्ट आता है, कुछ सीड्स आता है, वो सीड्स का जो टाइम होता है वो डिफरेंट आता है। कुछ सीड्स आता है 40 डेज में भी आता है, वो डिपेंड होता है। तो ये सीड के बारे में जो डिस्कस करेंगे, जो हम लोग जो सीड खरीदता है वो सीड भी अच्छा होना चाहिए। उसमें पहला चीज़ हमें चेक करना है कि उसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी होता है, डेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो चेक करना पड़ता है। प्रोडक्शन डेट कितना भी फर्स्ट मिल जाएगा वो ले लो। जो इंस्ट्रूमेंट पास आने वाला कुछ भी सीड्स नहीं खरीदो, क्योंकि इसमें लॉस होता है। नॉर्मली वी कैलकुलेट बेस्ड ऑन समथिंग गॉट a percentage, 90%, 80% ऐसा होता है, 60% होता है। जब 60% वाला जो सीड लिया तो आपको जब 100 सीड्स लिया उसमें 60 मिल जाएगा, बाकी 40 सीड्स या। इसका साथ साथ एक और प्रॉब्लम आता है, जो सीड्स हम लोग जो क्यूब्स में डालता है, मतलब ओएसिस क्यूब में डालता है, वो भी खराब हो जाएगा, तो ओएसिस क्यूब लूज हो जाएगा। लिप फॉर सीड्स वो 100% या 99% जर्मिनेशन रेशियो वाला सीड्स ही खरीदो। अच्छा वाला सीड्स खरीदो जो जर्मिनेशन ज़्यादा होता है। कोकोपीट अच्छा है ना, लाइक फॉर सबस्ट्रेट? कोकोपीट सबस्ट्रेट अच्छा है। पहले चीज़ क्या है कि हम लोग जो कोकोपीट खरीदते हैं उससे जानकारी जानना चाहिए कि इसका जो टेस्ट रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या है, पीएच कितना आ रहा है, ईसी कितना आ रहा है, ये जानकारी जानना चाहिए। उसके हिसाब से इसे वॉश करना है या ना वॉश करना है वो हमारा काम होता है। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स करना बेटर है या एरोपोनिक्स करना बेटर है? बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स करने में स्पेंडिंग का कुछ नहीं है, 250 रुपीज का मोटर को ऊपर जाके ड्रिप करा दिया तो वो पानी गिरते रहेगा, राइट? उसका प्रोज एंड कॉन्स है एरोपोनिक्स का और हाइड्रोपोनिक्स का, एंड विच इज बेटर? बेहतर अंशुमान ही बोलो, क्योंकि अंशुमान को कुछ मालूम है। हाँ, बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो। कुछ एक्सपेरिमेंट अंशुमान मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है ना कि पर स्क्वायर फीट अगर यील्ड ज्यादा चाहिए, पर स्क्वायर फीट यील्ड ज्यादा चाहिए ना, तो वो एरोपोनिक टावर्स बेस्ट है। क्योंकि मेरे एक टावर पे 115 होल्स है और 115 होल्स में अप्रोक्सीमेटली 100 पे तो चीजें उग जाती हैं। बिल्कुल जो लोएस्ट होल्स है और जो हाईएस्ट होल्स है वहां पे चीजें मेंटेन नहीं कर पाता ना, तो वहां पे थोड़ा सा इग्नोर्ड हो जाता है वो सारा होल्स। अदरवाइज 100 होल्स में तो हमने कोरिएंडर उगाया है, कॉलीफ्लावर भी उगाया है, काम तो बहुत अच्छा होता है। और पर स्क्वायर बोला तो एक टावर पे हमने अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 कॉलीफ्लावर्स उगाए थे एक बार, और काफी हेल्दी और बड़े बड़े हुए थे। अच्छा, बट एरोपोनिक्स है वो या हाइड्रोपोनिक्स? जो वो एरोपोनिक्स है वो, बट ट्रू एरोपोनिक्स वो वर्टिकल एनएफटी कह सकते हो, तो ट्रू एरोपोनिक्स तो कहीं से नहीं है, वो वर्टिकल एनएफटी सिस्टम जो सबमर्सिबल पंप पानी से लेके अंदर से पंप पानी ये करके ड्रिप करा के पैसे नहीं। मतलब हमारा नेटवर्क ऑफ टावर्स है, ठीक है, और हमारा सेंट्रल मोटर एक सेंट्रलाइज्ड मोटर है, वो मोटर पानी को खींचता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है चारों तरफ। एटलीस्ट 5-6 टावर्स है हमारे, ठीक है, और उसमें पांच ड्रॉप छह वाला इफेक्ट आता है। हाँ, वो हमने इसका भी एक जुगाड़ किया था। वो जो घर पे नाली होती है ना, ड्रेनेज होता है ना, तो वो ट्रेडिशनल ड्रेनेज होता है ना, छेद वाला, ढेर सारा वो लेके पीवीसी पे ऊपर रख दिया। एग्जैक्टली वही किया हमने। हाँ, वही किया, एग्जैक्टली यही किया। से चार्ज
जी। बस। और मेरे सेटअप पे ये है ना कि हमने एक पंप से 10 टावर्स किया, एक पंप से 10 टावर्स किया, और 5 मिनट 5 मिनट्स दोनों पंप्स को चलाया और 10 मिनट्स बंद रखा, ऐसे रखा। ये ऐसा होता है कि ये लो प्रेशर होता है, मतलब जो हमारा जो पानी आता है वो लो प्रेशर में आता है, वर्क करते हैं। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि वो एरोपोनिक्स का उसका जो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो छोटा छोटा पार्टिकल्स आते हैं वो अलग है, ये अलग है। वो अनुभव। आप पहले पूछे कि एरोपोनिक्स अच्छा है कि हाइड्रोपोनिक्स। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि एरोपोनिक्स भी अच्छा है, हाइड्रोपोनिक्स भी अच्छा है। इट डिपेंड्स अपॉन क्या हम करते हैं। एरोपोनिक्स में जो टावर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा प्लांट्स को बनाना बहुत मुश्किल है, बनाता है पर उसमें जो रिजल्ट बहुत कम आता है। हमें रिजल्ट चाहिए। एरोपोनिक्स टावर में हमें टोमेटो नहीं कर सकते, टोमेटो कर सकते हैं पर इतना ज़्यादा आप मेरा वीडियो देखा है, उसमें इतना ज़्यादा रूट आ रहे हैं, या रूट को ये इसका अंदर आता है, इसके लिए जगह होना चाहिए रूट बनने के लिए। तो हम जो प्लान्स क्या चूज करते हैं इसके हिसाब से हमें इसका डिज़ाइन चूज करना है। NFT चूज करना है तो NFT चूज कर सकते हैं, उसमें NFT है तो NFT में कुछ प्लान्स आता है वो कर सकते हैं। डच बकेट यूज़ करते हैं, उसमें डच बकेट अलग होता है। और आप हैं तो ड्रम कर सकते हैं जैसे मैंने किया, जैसे में सब मतलब पर वो नहीं आता है। हर चीज़ में डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम किसमें से हमें फ़ायदा मिलेगा उसमें हम यूज़ करना चाहिए। ओके। एंड अगर रूट क्रॉप हो गया तो रूट को कट करके वापस वो कप को लगा सकते हैं सेम प्लांट को, या वो एक आइडिया है। नॉर्मली हम लोग जब रूट ज़्यादा बन जाएगा, हमें रूट को बहुत सॉफ्ट से कर रहे हो कि अगर रूट है कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मली इन टावर्स में मुश्किल होता है क्योंकि ये निकालना मुश्किल होता है, पूरा रूट बन जाता है वो। आपने मेरे से एक बात पूछा कि मेरे साइड में एक होल क्यों लगाया। क्या है ना कि मैं साइड में होल क्यों लगाया कि वो ऐसा ओपन करो कट करो, सीड जल्दी जल्दी रूट में जो रूट होता है वो कट करके इजी निकाल सकते हैं। अगर जो इसमें से निकाला तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरा चीज़ है कि जो टावर्स का साइड से हम देख सकते हैं कि कुछ फंगिसाइड कुछ है, फंगस है, कुछ बैक्टीरिया है हमारा रूट में, तो इसलिए मैंने करने का है। इधर जो मुश्किल क्या होता है कि ये रूट को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कटिंग करना क्या है कि हम लोग जब कटिंग करते हैं जो रूट्स नए नए बन जाता है। एरोपोनिक्स में क्या होता है जल्दी जल्दी आएगा कि हम लोग फॉगिंग करते हैं, रूट को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं आते, कटिंग करके भी ज़्यादा आ जाएगा, नए नए आने चाहिए। और दूसरा चीज़ के हम ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए कि ये कुछ देर के बाद ये क्या होता है कि सही हो जाएगा। अब आपको मालूम नहीं क्या है वो क्या बोलते हैं चिप जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो हमें उसका जो रूटिंग में पानी भी बहुत कम होना चाहिए, उसमें सब प्लांट्स में एक लिस्ट होता है कि इतना इतना पानी चाहिए, इसके हिसाब से हमें पानी देना है। लाइक हाइड्रोपोनिक्स में पानी का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? लाइक दैट इज लाइक 5 मिनट टाइमर में चालू किया, 10 मिनट टाइमर में। उसका ऐसा है कि हम लोग को मालूम है कि नॉर्मली होता है एक प्लांट को कितना पानी चाहिए 1 घंटा में, वो हमें मालूम होना चाहिए पहली चीज़। वो टेम्परेचर और के हिसाब से होता है, नॉर्मली हम चेक करना है कि इतना ह्यूमिडिटी इतना टेम्परेचर है, हमारे प्लांट को कितना चाहिए। प्लांट भी ऐसा हम लोग कहना है वैसा है, हम लोग को ऐसा सोचना है। और मैं एक इंसान है, इसके हिसाब से प्लांट को भी देखना है, प्लांट को भी पानी चाहिए, प्लांट को भी सब चाहिए। हमारा जैसा ही वर्क होता है, तो हमें क्या जानना चाहिए कि इतना पानी चाहिए, तो इसके हिसाब से हमें पानी का कंट्रोल करना पड़ता है। नॉर्मली प्रिपरेशन में हमें मालूम है कि इतना इतना पानी चाहिए, इतना इतना पानी दे दो। ज़्यादा पानी दिया मुश्किल, कम पानी दिया वो भी मुश्किल है। डिहाइड्रेट होता है, प्लांट भी डिहाइड्रेट होता है, उसके साथ साथ वो खराब भी होता है।
ज्यादा पानी एक्सपोज किया तो रॉट हो जाएगा वो। रॉट हो जाएगा, इसका साथ साथ भी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। कितना भी हम पानी डाल दिया वो पूरा प्लांट निकल ओके ट्रांसपिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। ओके और कुछ कैसे बात? एक चीज दिखानी है, एक चीज दिखानी है। चीज दिखाओ। तो ये एक ये इस तरह का नेटवर्क है छोटा सा। जी वैसे ही टावर ढेर सारे यहाँ पे और इधर और यहाँ पे ढेर सारे टावर्स बना रखते हैं, वो टावर सेट करेंगे। अब ये कहना है ना कि ये जैसे ये यहाँ पे ये जो बंदा यहाँ पे टावर का एक सेक्शन लगा रहा है, अब अगर हम लोग इस सिंगल टावर यूज करेंगे तो वो सिंगल टावर में जैसे पाइप को बनाया, पाइप को मोल्ड करके बनाया, तो उसमें पानी लीक नहीं करेगा किधर से भी। जी वो जो यहाँ पे जॉइंट्स है ढेर सारे, यहाँ पे जॉइंट्स है सिंगल सेक्शन में, सेक्शन को जो एक सेक्शन के ऊपर दूसरा सेक्शन रखा है, यहाँ पे मतलब पानी इधर से लीक नहीं करेगा, मेरा ये पूछना है। नहीं, वो क्या है ना कि हम जो उसका जो पानी का जो कंट्रोल्स होता है नॉर्मली कितना, वो इसलिए मैं पहले से बताया कि हमें एक जो क्या बोलते हैं कि एक टावर्स होता है उसमें कितना पानी चाहिए, हमें उसका जो कैलकुलेशन पहले करना पड़ता है। नॉर्मली कितना पानी चाहिए, ज़्यादा फोर्स में पानी नहीं जाना चाहिए, इसमें एक लिमिट होता है। अगर आप लोग एक मोटर से पाइप पानी खींच रहे हैं तो आप सोचिए कि आपका जो डिस्चार्ज रेट होता है वो एक आवर में 1 लीटर है, और आपका जो वाटर होता है वो 1 आवर में 5 लीटर आ रहा है। आपको क्या होता है कि आपका जो ड्रिपर्स होता है, आपका जो कुछ होता है वो खराब भी होता है, उसका साथ साथ पानी भी ज़्यादा आता है। उसमें एक चीज जानना चाहिए कि हमें कितना पानी का डिस्चार्ज चाहिए, वो हमें जानना चाहिए, इसके हिसाब से हमें पानी देना चाहिए। इसके हिसाब से हम मॉडल प्लान करते हैं। हर रिपोर्स होता है, हर जो कुछ भी होता है उसमें जो ऊपर लगाता है उसमें एक इतना पानी निकलने का होता है। नॉर्मली एक ड्रिपर के लिए आता है, ऑनलाइन ड्रिपर्स आता है, उसमें 2 लीटर आता है पर आवर, 4 लीटर आता है, 8 लीटर आता है, 16 लीटर आता है, 64 लीटर आता है। तो 1 घंटे में 64 लीटर वो नोजल से निकल जाएगा। उसमें एक बार भी होता है, इतना बार में मैक्सिमम 1.5 to 3 बार में इतना पानी जाएगा। तो इसके हिसाब से हमको प्लान करना चाहिए क्या कौन सा मोटर रखना चाहिए, उसके हिसाब से हमें ये पूरा विदाउट लीकिंग हो जाएगा। मेरा प्राइमरी कंसर्न बस वही था कि तो कमर्शियल लेवल पे अगर करना हो तो उतना सारा टावर्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। मेरा प्राइमरी कंसर्न ये ज्वाइन करने का बस सिंपल यही था। आप बता रहे हैं कि आपको कितना करना चाहिए, आप कितना में करना चाहता है? 1000 1000 से शुरू करना है। 1000 ये करना चाहता है आप लोग, आप मतलब 1000 प्लान टावर्स। तो बेहतर है कि आप एक डिजाइनर से वो जो टावर्स होता है उसका एक टावर्स आपको 1000 टावर्स बनाना है। वो 1000 टावर्स 1000 या 1500 में एक को बना सकते हैं हम लोग। तो साथ साथ एक डिज़ाइन भी हो जाएगा। डिज़ाइन को करते समय बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। अभी जो मार्केट में है उसमें क्या नेगेटिव है वो देखना पड़ता है, और उसके हिसाब से हमें उस टावर्स का डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करना पड़ता है। अगर 2 या 4-5 आदमी लोग को ये सब बिजनेस करना अच्छा लगता है तो हम लोग साथ में मिलकर हम ये क्या नहीं ये है ना वो उसका मोल्ड होता है वो हम बना सकते हैं। वो साथ मिलकर कर दिया तो वो अच्छा भी काम हो जाएगा।
अगर मोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि हमारा बजट अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का है। हम लोग 2 लोग मिलके ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख का बजट डिसाइड किया है क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन ग्रीन हाउस से चला जाएगा क्रिएट करने में। वो बहुत बड़ा बजट का पोर्शन चला जाएगा ग्रीन हाउस में क्योंकि अभी वो छोटे स्केल पे तो हमने लोकल वेंडर से करवा लिया। नहीं, दो चीज़ है कि आप लोग जो ग्रीन हाउस बना रहे हैं उसमें आपको बहुत खर्चा कम करना पड़ता है। आप ग्रीन हाउस जो बना रहे हैं जो लोकल कितना भी फायदा गवर्नमेंट से ले लो वो ले लो, कितना भी कम में आप कर सकते तो वो कर दो। ज़्यादा खर्चा नहीं करो क्योंकि ये एक टाइम खर्चा है, फिर भी वो ज़्यादा नहीं करो। हमें खर्चा कम होना चाहिए, ये सब रिटर्न मिलना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है और मिलना बहुत मुश्किल है। आप जो सोच रहे हैं अब कुछ देर पहले मेरे को बताया कि आपको 400 में आप सेल कर सकते हैं। मैं 8 साल से ये बिजनेस में हूँ, मेरे को मालूम है कितना में सेल हो जाएगा, क्या क्या मुश्किलें पड़ जाएगा, बीच में आएगा। ये ऐसा है कि एक माइनस है, आएगा कब आएगा मालूम नहीं, ऐसा आएगा पकड़ कर लेकर जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दिन में प्राइस आएगा इतना, दूसरा दिन में दब गया। हम लोग जो सेल करने रहे हैं वो भी नहीं आएगा। आप जान सकते हैं कि बहुत एग्रीकल्चर जो करने वाला आदमी लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो इसमें से 10,000 आया तो भी उसमें 1 और 2 आदमी एक टाइम में करोड़पति बन जाते हैं। 1 और 2, बाकी सब भी 1 और 2। उसके वो टाइम में उसके पास सब चीज आता है कि कितना भी वो लॉस होगा वो एक दिन में करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि वो मेहनत होता है। ऐसा ही होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले आप जो खर्चा है वो कम करो, इतना भी कम करो, 10 या 20 या 40 आदमी से कोटेशन कितना नहीं दे दो, कम करो। बात करो कि मिस ये इतना में दे रहे, ये इतना में दे रहे, मैं आपको कम दे दो, मैं आपको कम दे देगा। ऐसा बात करके कम कर। एक यूट्यूब में एक जुगाड़ पॉली हाउस एक ने बनाया है, वो ये पीवीसी पाइप से जुगाड़ नहीं बनाओ, जुगाड़ नहीं करते हैं। जुगाड़ नहीं करो। जो कर रहा है वो अच्छे तरह से करो, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जुगाड़ की बात में हम 14 वो बोला कि वो तो दिखा रहा है कि वो कैसे रिमूव करते हैं सीजन वाइज, एंड 14 ईयर्स से वो इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज और बहुत बड़ा पॉलीहाउस बना है। लाइक उसके ऊपर वो लोग शीट डाल देते हैं, फिर उसके बाद शीट रिमूव करते हैं। उन्होंने जॉइंट सब कुछ दिखाया है। क्या है ना कि आप जो बनाया वो आप दूसरे को दिखा रहे हैं, वो उसमें से आप बिजनेस भी बन सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। अब जुगाड़ किया दूसरे को दिखाया तो वो बिजनेस नहीं बन जाएगा, आपको बिजनेस नहीं करना। ये एक चीज़ ऐसा है कि ऐसे एक चीज़ से बिजनेस नहीं आता है, डिफरेंट चीज़ से हमें बिजनेस आता है। एग्रीकल्चर में एक जो सेल करने उसी से भी बिजनेस नहीं आएगा। आपको उसमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग से फ्री ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट ट्रेनिंग देना पड़ेगा। 10,000 आदमी या 50 और 10,000 नहीं 100 और 50 आदमी को ट्रेनिंग दे दो, उसमें से पैसा कमाओ, तो भी आपका इनकम आता है। ऐसा करना पड़ता है। आपका जो नॉलेज बढ़ जाएगा, किसी दूसरे को बताना का टाइम आएगा, आप भी करो। ऐसा नहीं कर जुगाड़ करके कुछ बनाओ, इसमें जुगाड़ नहीं करना। इसमें ये बहुत सीरियस है कि इसमें अच्छे तरह से बनाओ, अच्छे तरह से कमाओ। बीच में पैसा ही जाना। केरला में बहुत हवा है, मेरा एक करने से बनाया था, रातों रात उड़ गया। हवा बारिश पान हो जाता है। अलग अलग एक बना है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म जैसा, 10 दिन पूरा उड़ जाएगा इसे। Actually, you know where is from Durai is from which place?
ही इज माउंटेन 15 डिग्री है अभी पारा। और एक और चीज है, वो इधर से नहीं है, वो नॉर्थ इंडिया से है। नहीं नॉर्थ से नहीं हूँ, तो मैं तमिलनाडु से हूँ, बट मैं मुंबई में रहता था 28 इयर्स। अभी मैं IT में काम करता हूँ। एंड ये वाला अब मैं कार्डमम प्लांटेशन संभालता हूँ। मैंने 1 एकड़ कार्डमम प्लांटेशन लिए। कार्डामम का कुछ भी है तो उससे पूछो, कार्डामम बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत ये पता मैंने ऐसे ही जगह लेते करके ऐसे मजाक में आ गया था, पसंद आ गया, ले लिया कार्डमम प्लांटेशन 1 एकड़। अब उसको संभाल रहा हूँ। एक चीज है मेरे को पूछना था, मेरे को यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलता है जी बिकॉज मैं कार्डमम के लिए न्यूट्रिएंट्स डालता हूँ पाउडर फॉर्म में, लिक्विड में डाल के ये करने के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने देखा है, NPK भी देखा है। यही सेम पाउडर मैं हाइड्रोपोनिक्स में भी मिक्स पानी में मिक्स करके अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट मिक्स करके यूज कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि उसमें लिखा रहता है हाउ मच ग्राम फॉर दिस मच। नहीं, इसमें एक चीज है, आप लोग इसका हिसाब से मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपका पानी का pH बहुत कम है और आपका पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसके हिसाब से आप केमिकल को चूज कर सकते हैं कि ये pH का जो लेवल होता है कुछ टाइम में, अगर आपका जो रिटर्न वाला सिस्टम है, मतलब आप हाइड्रोपोनिक्स में पानी डालता है पर वापस नहीं आएगा तो मुश्किल नहीं। अगर जो पानी वापस आता है उसमें pH एक और बार चेक करना पड़ता है नॉर्मली, इसलिए नहीं मीटर्स होता है या ऑटोमेशन यूनिट होता है। अगर आप लोग जो जो ये होता है ना, जो इसका जो pH का हिसाब से आप लोग केमिकल को भी चूज कर सकते हैं, कौन सा केमिकल्स अच्छा है इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको जो pH का जो वेरिएशन होता है न्यूट्रिएंट्स भी पीएच को चेंज करता है मतलब। जी, वो कैसा होता है कि आप लोग जब जो न्यूट्रिएंट्स जाता है, जब आपका जो प्लांट्स का रूट में से निकल कर वापस आता है, अगर प्लांट में ज़्यादा फ्रूट है तो आपका पीएच भी चेंज होगा, ज़्यादा लीफ में आपका पीएच भी चेंज होगा। ये कैसा ये एक साइंस है। जब भी आपका जो रूट से निकल कर वापस आता है कि इसका पीएच चेंज हो जाता है, वो डिपेंड होता है कि कितना फ्रूट्स है, कितना वेजिटेटिव्स है, इसका डिपेंड्स में होता है नॉर्मली। तो आपने जो मैंने देखा केमिकल्स होता है, जो केमिकल्स आप जो यूज़ कर रहे हैं, उस कौन सा यूज़ करना है, ये कौन सा प्लांट में डिपेंड होता है, वो आप डिफरेंट सेम नहीं हो रहा है। अच्छा 1 मिनट और ये थोड़ा जाना पड़ेगा। जी 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 जी